Hello students, you are watching Kashyap tutorial and I am Prabhakar Acharya. Students, this is the board paper 2022 of Sanskrit Composite, and till now we have seen 3 videos and this is last video on Chaturtha Vibhaga. So here we are going to discuss grammatical questions which will be for 10 marks. So let's start first questions. Here the questions are Chaturtha Vibhaga based on the grammar part. Bhasha Abhyasa, it's a chapter is so clearly mentioned Chaturtha Vibhaga on the next page, and then start writing clearly question number just as it is written, or fourth or Prithak Karnam. And also I suggest you draw this diagram. ये जो box दिया है वो draw करो और फिर लिखो answers. So first one is based on grammar part. Manjushata namani sarvanamani cha prithak kuruta. Manjusha, choosing the forms correctly and write in correct box. Means naam is nouns and sarvanam is pronouns. So again, once again I tell you pronouns. First, if you are able to separate the pronouns from this box, then simply you get the marks. So pronouns till now we have seen from A standard, since A standard. So in A standard you had pronouns asmat, yushmat, tad, etat, kim. In 9th standard you have tables idam, sarva and bhavat table, and from 10th standard there is no forms given. 10th standard का यूज ही नहीं होता है. So अगर आपको pronouns मालूम है तो just find out pronouns, rest will be nouns. So नाम सर्वनाम. मंजुषा is siya, tvam, manasa, balye, kasme and graham. These are the forms given from nouns and pronouns together. आपको इससे पिकअप करना है कि यहाँ पे नाउन्स क्या है, प्रोनाउंस क्या है. तो त्वम फ्रॉम युष्मत टेबल, युष्मत वर्ड, सो त्वम इज सर्वनाम. हियर इट इज रिटन त्वम. मनसा इज मनस वर्ड, सकारांत, मनस मीन्स माइंड, सो दिस इज नाउन, सो यहाँ पे आएगा. बाल्य, बाल्य इज इन चाइल्डहुड, सो इट इज ऑल्सो नाउन, यहाँ पे आएगा. कस्मे, ओरिजिनल वर्ड इज किम, सो इट इज क्वेश्चन प्रोनाउन, so it will come here. And the gruham is noun, which is meaning is house, so ये noun में आएगा. Just see how I have written answer. So you should also write like this way. Balye, manasa, gruham are noun, tvam and kasme are pronoun. So it is of 2 marks once again. Now second question here, fourth में और का part 2, it is क्रिया मंजुषातः क्रियापदानि धातु साधित विशेषणानि च पृथक् कुरुत. Kriya Padani, that means 5 lakars, and 5 lakars suffix I told you at the beginning. 5 lakar suffix, if you know, then simply you can get the answers. 5 lakars are lat lakar, tita, anti, sita, ta, ami, ava, ama, te, ite, ante, se, ite, dve, I, vahe, mahe. Similarly, lang lakar, ta, tam, an, visharga, tam, ta, va, ma. And similarly, if you know the suffix like this way, simply you can get the answer. So just we'll try. खादंती, so here is anti, it is verb, so क्रियापद में आएगा. पूजितः, तः पार्टिसिपल, त प्रत्यय, that is धातु साधित विशेषण, त और तवत्वान. मुक्तः, again त प्रत्यय, so मुक्तः is also participle. लभते, ते इतेयन्ते, आत्मनेपद forms, so it is क्रियापदम. And भेतव्यम is तव्य प्रत्यय, potential passive participle, so ये धातु साधित विशेषण में आएगा. So धातु साधित विशेषण आर पूजितः, मुक्तः and भेतव्यम. See here, खादंती and लभते आर verbs, पूजितः, मुक्तः और भेतव्यम आर धातु साधित विशेषण. So these are for 2 marks. So total 4 marks का ये क्वेश्चन होगा. Next is different question, that is निर्दिष्टाः कृतिः कुरुता. So do as directed. This question is actually do as directed. चतुर्थ द्वे, so 4 में से कोई 2 out of 4. So first one will be on based on numbers, संख्यावाचक, which you have studied in 9th standard as well as in 10th standard. So वहाँ से आएगा. So number based, you have to choose correct word and then you have to write again sentences. So see first, भगवता व्यासेन पुराणानि रचितानि. See 2 out of 3, 3 में से कोई 2 ही लिखना है, बट आपको मालूम है तो 3 आप लिखो. तो भगवता व्यासेन पुराणानि रचितानि, तो पुराणानि इट इज संख्यावाचक, तो संख्यावाचक 18.
दिस इज अष्टादश, अष्टादशः नहीं होता है, अष्टादश. इफ यू हैव लर्न द नंबर देन यू कैन सिंपली गेट एंड योर आंसर विल बी लाइक दिस वे. भगवता व्यासेन अष्टादश पुराणानि रचितानि. इन अ कंप्लीट सेंटेंस एंड अंडरलाइन द वर्ड. सेकेंड वन इज आर्यभट्टः इति भारतवर्षेण प्रेषितः उपग्रह. सो दिस इज क्रमवाचक. तो उपग्रह इज मैस्कुलाइन प्रथमा, एक वचन. सो प्रथमः इसका आंसर आएगा आर्यभट्टः इति भारतवर्षेण प्रेषितः प्रथमः उपग्रह. दिस इज द आंसर. थर्ड वन इज छात्रः दिनस्य अध्ययनं करोति. सो इट इज आवृत्तिवाचक मीन्स फ्रीक्वेंटेटिव नंबर्स. सो दिनस्य जैसे ही आया तो इसमें आवृत्तिवाचक आएगा. तो द्वै और द्विवारम, द्वे और द्विवारम. सो द्विवारम, जब भी वारम शब्द दिया है ऑप्शन में तो वारम यूज करो. तो छात्र दिनस्य द्विवारम अध्ययनम करोति. सो दिस इज द आंसर. अंडरलाइन दिस वन अगेन, रीड एट द सेंटेंस. सो दीज आर थ्री आंसर्स एंड इन दिस वे यू हैव टू राइट उत्तरम, और तीनों अटेम्प्ट करो. न समास, समास विग्रह नाम समास नाम भी सह मेलनम कुरुता. आपको सिर्फ मैच करना है. तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे मार्क्स गेन करना इजी होता है. आपको अगर थोड़ा सा ट्रिक मालूम है तो सिंपली यू कैन राइट डाउन द आंसर्स. सी हियर विविधानी बीजानी. जब ऐसे मैच करता हुआ वर्ड आपको दिखाई दे बिना च का, तो आप समझ जाओ कि कर्मधारय समास है. तो विविधानी बीजानी कर्मधारय समास. यू कैन सी हियर, आपको आंसर ऐसे लिखना है. देन दिने दिने, द सेम वर्ड इज रिपीटेड ट्वाइस इन अ सप्तमी विभक्ति. देन अंडरस्टैंड दिस इज अव्ययी भाव समास. सो हियर इट इज अव्ययी भाव समास. लघुनम हस्ते यस्य सह. अगर यस्य सह दिखाई देता है यू सिंपली अंडरस्टैंड दिस इज बहुब्रीहि समास, बिकॉज यस्य सह, यस्य तत्, यस्याः सा एसेट्रा फॉर्म इंडिकेशन ऑफ बहुब्रीहि समास. सो लघुनम हस्ते यस्य सह बहुब्रीहि समास. देन next one, no इच्छा. in the समास word if you say beginning letter is separately written no, तो इसको समझ जाओ ये नए तत्पुरुष समास है. सो no इच्छा इज नए तत्पुरुष समास. चिंता या मग्ना, इफ मग्ना, रथा, लीना, कुशलः एसेट्रा सेकेंड पार्ट में वर्ड आता है, देन अंडरस्टैंड दिस इज सप्तमी तत्पुरुष समास. वन सेकेंड रिपीटिंग, रतः, मग्नः, पटुः, कुशलः, लीनः, ये सारे वर्ड सेकेंड पार्ट में है तो सप्तमी. तो जस्ट एज हियर इट इज गिवन मग्ना. सो मग्न, चिंता या मग्ना सप्तमी तत्पुरुष समास. एंड कवयः च पंडिताः च, इफ च यूज किया गया है, ओनली च, नॉट एतेषाम एतयोः, तो इसको समझ जाओ ये इतरेतर द्वंद्व समास है एज इट इज रिटन. सो राइट आंसर लाइक दिस वे, उसके सामने ही आप लिखो, बट ये ऑर्डर में लिखना है आपको. सो दिस इज समास फॉर 2 मार्क्स. सो एनी 2 आउट ऑफ 4 आपको करना है, तो इसमें से 2 कोई किया तो आपको मार्क्स आ जाएंगे. नेक्स्ट वन इज मंजूषातः समानार्थक शब्दान विरुद्धार्थक शब्दान लिखा था. चूज द करेक्ट सिनोनिम्स और एंटोनिम वर्ड्स एंड रीराइट. तो आपको पूरा आंसर लिखना है. दिस नॉट द वे दैट यू आर राइटिंग. राजा का समानार्थी शब्द अगर नुपा है तो सिर्फ मैं नुपा लिख रहा हूँ, राजा भी लिखो जस्ट एज. तो राजा, योर आंसर शुड बी लाइक दिस वे, राजा, नृपः, अ किंग. पुरतः मीन्स पृष्ठतः, पुरतम इज बिहाइंड, पृष्ठतम इज बिफोर. पादा मीन्स फूट, सो पादा मीन्स चरणः, यहाँ पे दिया हुआ. यू कैन सी योर आंसर शुड बी लाइक दिस वे. अंडरलाइन करना कंपल्सरी है, यू जस्ट डू अंडरलाइन दैट, ताकि वो एग्जामिनर को इजी हो जाता है. सुकृतम, सुकृतम मीन्स सुकृतम दुष्कृतम, गुड डीड्स, एंड दुष्कृतम विल बी अपोजिट वर्ड. तो ये साइन से समझ जाओ कि अपोजिट, यू हैव टू राइट अपोजिट वर्ड, और बाय दिस साइन यू अंडरस्टैंड सिनोनिम वर्ड्स. सो दीज आर द आंसर ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योग्यम पर्यायम चिन्हित. चूज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डू एज डायरेक्ट, स्पेशली एक्टिव पैसिव वॉइस एंड त्वम और भवान एसेट्रा विशेषण विशेष बेस्ड क्वेश्चन. सो फर्स्ट वन इज बालकः अन्य शास्त्राणि अधीतवान. सो बालकः अन्य शास्त्राणि अधीतवान. यू हैव टू फाइंड कर्तृवाच और कर्मवाच. तो अधीतवान शब्द आया, एंड इफ द सब्जेक्ट इज इन प्रथमा विभक्ति, बालका इज अ सब्जेक्ट, बॉय स्टडीड अदर शास्त्र, अदर स्क्रिप्चर्स. सो अगर सब्जेक्ट प्रथमा में है तो कर्तृवाच्य है. तो सेंटेंस लिखना है, उसके सामने मेंशन करो कर्तृवाच्य. सेकेंड वन इज
त्वम धनु डैश तेज और तेजतु. So if you know suffix तु ताम अंतु तीता अंति सीथत एसेट्रा, तो इसका आंसर भी आपको सिंपली मिल जाएगा. त्वम इज ऑलवेज इन सेकेंड पर्सन. So whichever lakar are used over there, whichever lakars are given in the bracket, you choose second person forms. Just as tvam, so tyaja. Tyaja is lot lakar, madhyam purush ek vachan form. So but you have to write answer in complete sentence. And the last one is udyane dash vrukshaha santi. तो लास्ट हमेशा विशेषण पे आएगा. तो वृक्षाहा को अब ये डैश के बाद में जो वर्ड है उसको आपको देखना है. तो वृक्षा इज पुलिंग शब्द बहुवचन. तो विस्तीर्ण नहीं, विस्तीर्णा विल बी द आंसर बिकॉज इट इज ऑल्सो बहुवचन. तो उद्याने विस्तीर्णाः वृक्षाः सन्ति. सो ये आंसर इस तरह से लिखना है, अंडरलाइन करना है. सो इस चार में से कोई दो ही अटेम्प्ट करना है, बट आपको आता है तो आप चारों के चारों अटेम्प्ट करो बिकॉज आई नो टाइम इनफ होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज इट इज कंपल्सरी यू हैव टू राइट विशिष्ट विभक्तेः उपयोगं कृत्वा वाक्य निर्माणं कुरुतः. बाय यूजिंग special forms, special vibhakti, you have to make a sentence. This is compulsory and it is based on uppad vibhakti. So the forms are sneha, that is root, four papa, four parasmay pad ka form hai. Vina is indeclinable, it requires sneha required sapmi vibhakti, to whom we love. Vina required dvitiya, tritiya और पंचमी, which its meaning is without. Ruch, rocha required chaturthi vibhakti, but the subject will be in chaturthi, and it is one apa. Ruch rocha atmanepad ka form hai. Krute is indeclinable, it requires shashti vibhakti. So see the sentence, how your sentence should be. This is just for example. Sneha, तो माता पुत्रे स्नेहयति. तो पुत्र son is loved by mother, so पुत्र is in सप्तमी. जिससे लव किया जाता है, प्रेम किया जाता है, वो सप्तमी में होना चाहिए. बट अंडरलाइन करना जरूरी है. जस्ट अंडरलाइन और हाईलाइट द वर्ड. देन जलम. सो जलम विना जीवनम अशक्यम. विना का यूज किया तो द्वितीय और तृतीय और पंचमी होना चाहिए, बट यूज करो एक ही विभक्ति. डोंट यूज ऑल थ्री विभक्ति, और जो आपको सिंपल लगता है वो यूज करो. So, जलम विना जीवनम अशक्यम. रुचि रोच. सो गणेशाय मोदकाः रोचन्ते. मीन्स लॉर्ड गणेशा लाइक्स मोदक. सो लॉर्ड गणेशा लाइक्स, दैट इज सब्जेक्ट. सो गणेश चतुर्थी में. एंड द कृते, तो भक्त देवस्य कृते पुष्पाणि आनयति. अ डिवोटी ब्रिंग्स फ्लावर फॉर गॉड. तो फॉर गॉड, बट कृते की वजह से ये षष्ठी आया. सो इट वाज फोर्थ पार्ट of board paper 2022 of composition Sanskrit. So keep on practicing this. Very soon I will upload, before your paper beginning, I will upload next paper of composition as well as entire Sanskrit and also remaining chapters. So thank you watching this video and share with your friends.